Hello everyone. In this video हम डिस्कस करेंगे degradation of purine nucleotides. Degradation of dietary nucleic acids occurs in small intestine, जहाँ पर a family of pancreatic enzymes रहते हैं. Pancreatic enzymes रहते हैं small intestinal secretion से जो enzymes रहते हैं वो hydrolyze करते हैं nucleic acids को nucleotides में. कहाँ पर? Inside the intestinal mucosal cells. Mucosal cells के अंदर purine nucleotides are sequentially degraded by specific enzymes to nucleosides, and then nucleosides by nucleosidases into free bases. Ultimately, free base uric acid production के लिए responsible रहता है, which is the end product of this pathway. Purine nucleotides de novo synthesis से are degraded in the liver primarily. कहाँ degrade होते हैं? Primarily liver में होते हैं. Free bases are sent out from the liver and they are salvaged by peripheral tissues. Salvage pathway में वो use हो सकते हैं free bases जो के degradation dietary nucleic acids के degradation से बनते हैं. Now degradation of dietary nucleic acids in small intestine हम देखें होता कैसे है. तो जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में, तो राइबोन्यूक्लियोसिस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस फॉर आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली, these are secreted by pancreas. They hydrolyze dietary RNA and DNA to oligonucleotides. सबसे पहले न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स को oligonucleotides में तोड़ेंगे. Oligonucleotides are further hydrolyzed by pancreatic phosphodiesterase, producing a mixture of 3 and 5 mononucleotides. In intestinal mucosal cells, a family of nucleotidases is present, जो कि phosphate group को remove करता है hydrolytically, releasing nucleosides. Nucleotidases act करेंगे, ये oligonucleotides जो बन गए उन पे act करेंगे और वो nucleosides बनाएंगे. Hydrolytically they will remove what? They will remove the phosphate group. These nucleosides further are degraded by nucleosidases. Nucleosidases जो रहते हैं इनको nucleoside phosphorylases भी कहते हैं. ये further nucleosides को तोड़ेंगे to free bases and sugar. Ribosyl phosphate and deoxyribosyl phosphate. Dietary purine bases are not used to any appreciable extent for the synthesis of tissue nucleic acids. मतलब they are not needed. They are not dietary essential for the synthesis of endogenous synthesis of nucleic acids. Dietary purine bases. Instead, they are generally converted to uric acid in intestinal mucosal cells. Ultimately, if they are not needed for the synthesis, तो उनका क्या fate रहता है? वो degradation pathway में जाते हैं, uric acid बनाते हैं. Uric acid का क्या fate रहता है? Most of the uric acid enters the blood or eventually then it is excreted in urine. अच्छा, mammals में other than primates, mammals urate oxidase, uricase enzyme है उसको express करते हैं, which cleaves the purine ring generating allantoin. ये mammals में होता है, primates को छोड़ के, कि उनका जो end product रहता है वो allantoin बनता है. वो express करते हैं urate oxidase को, जो कि cleave करता है purine ring को, तोड़ता है और allantoin बनाता है. Modified recombinant urate oxidase आजकल clinical use किया जा रहा है urate levels को lower करने के लिए. क्या? Modified recombinant urate oxidase. It is used clinically, therapeutically. ये जो डायग्राम है इसमें वही बताया गया है कि कैसे डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है. Now formation of uric acid. Summary of the steps in production of uric acid in genetic diseases associated with deficiencies of specific degradative enzymes are shown in the coming figure. और उसमें जो bracketed numbers हैं वो बताते हैं specific reactions. अब ये जो figure है इसमें आप देख रहे हैं ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है. दिस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट
डीएमाइनेट होता है एएमपी डीएमाइनेज के प्रेजेंस में और आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है. This inosine monophosphate is converted to in presence of 5' nucleotidase, ये convert हो जाता है inosine में. फिर purine nucleotide न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजैंथीन में, बेस में. न्यूक्लियोसाइड inosine जो है वो is converted into what? Is converted into hypoxanthine base in presence of which enzyme? PNP, purine nucleoside phosphorylase. Then this hypoxanthine is converted into xanthine by which enzyme? Xanthine oxidase. Xanthine oxidase. ठीक है. और ये xanthine जो है अगेन xanthine oxidase की प्रेजेंस में यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये पूरा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से चालू हुए. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीएमाइनेट होगा और आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा. आइनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है ये 5' न्यूक्लियोटाइड 5' न्यूक्लियोटाइड डेज की प्रेजेंस में टूटेगा इनटू आइनोसिन एंड दिस आइनोसिन एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में हाइपोजैंथीन बेस में टूट जाएगा. न्यूक्लियोसाइड इज ब्रोकन डाउन इनटू बेस विद रिलीज ऑफ द शुगर and this base is then converted into xanthine. Hypoxanthine is converted into oxidation hota hai iska xanthine oxidase ki presence mein. Again it is converted into xanthine and xanthine finally is oxidized to, in presence of xanthine oxidase only, uric acid. Similarly, in case of GMP, the guanosine monophosphate 5' nucleotide 5' nucleotide की प्रेजेंस में guanosine में कन्वर्ट होता है और फिर guanosine in presence of purine nucleoside phosphorylase is converted into guanine and guanine is then deaminated to form xanthine. Then further xanthine is oxidized to form uric acid. Now this AMP adenosine monophosphate in presence of this enzyme nucleotidase is converted into adenosine. Adenosine in presence of deaminase enzyme is converted to inosine. Adenosine is converted to inosine in presence of adenosine deaminase. अब ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है कि एडिनोसिन डीएमाइनेज की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट लीड्स टू व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. इससे जो डिसऑर्डर होता है वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. यहाँ यूरिक एसिड बन रहा है. ये यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन जब हो जाता है एक्सेसिव सिंथेसिस इट लीड्स टू विच डिजीज? गाउट. एंड प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की जो डेफिशिएंसी है इस डेफिशिएंट ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी. एंड इट इज ये भी इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दिस एरिया डेफिशिएंसीज की सिवियरिटी रहती है एंड इट अफेक्ट्स ओनली टी सेल्स. ये सिर्फ टी सेल्स को प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और अफेक्ट्स टी सेल्स. ठीक है. ये जो अभी हमने फिगर देखा उसमें जो ब्रैकेट्स थे अभी हम ब्रैकेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डेफिनेट एंजाइम्स और उनसे एसोसिएटेड डिजीजेस से. तो जो पहले नंबर का हमने रिएक्शन देखा उसमें अमीनो ग्रुप रिमूव होता है. डीएमाइनेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है? एएमपी टू प्रोड्यूस एएमपी से टू प्रोड्यूस आईएमपी बाय एएमपी डीएमाइनेज या एडेनोसिन से टू प्रोड्यूस आइनोसिन. हाइपोजैंथीन राइबोज रहता है एनोसिन उसमें भी एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है. तो ये दोनों रिएक्शंस में डीएमाइनेशन हो रहा है. कौन सा? एएमपी से आईएमपी बन रहा है एएमपी डीएमाइनेज के प्रेजेंस में और एडिनोसिन से आइनोसिन बन रहा है एडिनोसिन डीएमाइनेज के प्रेजेंस में. ठीक है. ये डीएमाइनेशन रिएक्शंस हैं. सेकेंड जो है आईएमपी और जीएमपी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और जीएमपी मोनोफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स inosine and guanosine by action of 5' nucleotidase. Then
थर्ड नंबर का जो ब्रैकेट है उसमें प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज के बारे में बताया है। ये एंजाइम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज क्या कन्वर्ट करता है, किसको? ये कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड आइनोसिन और ग्वानोसिन को इनटू देयर रिस्पेक्टिव प्यूरिन बेसेस, हाइपोजैंथीन और ग्वानिन। आइनोसिन हाइपोजैंथीन बेस में कन्वर्ट होगा पीएनपी की प्रेजेंस में, और ग्वानोसिन जो है ग्वानिन में कन्वर्ट होगा। फोर्थ नंबर का जो ब्रैकेट इस फिगर में बताया हुआ है वो ग्वानिन डीअमाइनेट होता है टू फॉर्म xanthine, है ना? ग्वानिन इज डीअमाइनेटेड टू फॉर्म xanthine in presence of guanine। फिफ्थ नंबर का जो ब्रैकेट है उसमें हाइपोजैंथीन ऑक्सीडाइज हो रहा है by xanthine oxidase to xanthine, which is further oxidized by xanthine oxidase to form ultimate final product uric acid, which is the final product of human purine degradation. और ये uric acid is then finally excreted in urine. Now what are the diseases which are associated with purine degradation? सबसे पहला most important is gout. Gout क्या है? तो gout एक disorder है which is initiated by high levels of यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो कि एंड प्रोडक्ट होता है, अभी हमने देखा प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का। सो इट इज इनिशिएटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। ब्लड में हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? हाइपर यूरेसीमिया। एंड दिस हाइपर यूरेसीमिया इज एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। दो मेजर कारण हो सकते हैं, या तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कम हो रहा है, अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है, या फिर बहुत अधिक बन रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो hyperuricemia, which is excessive levels of uric acid in blood, can lead to deposition of particular type of crystals रहते हैं, इनको मोनोसोडियम क्रिस्टल्स कहते हैं। मोनोसोडियम क्रिस्टल्स डिपोजिशन होता है इस डिजीज में। तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, डिपोजिशन ऑफ MSU crystals in the joints, and an inflammatory response to the crystals, जो कि कॉज करता है फर्स्ट acute and then progressing to chronic gouty arthritis. So what is actually gout? उसमें ये hyperuricemia, increased levels of uric acid in blood, जो कि क्या कॉज करता है? डिपोजिशन कॉज करता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में भी कि कौन से तरह के क्रिस्टल्स रहते हैं। तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स रहते हैं जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पहले अक्यूट होता है और फिर प्रोग्रेसेस टू क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस। नोडुलर मासेस बन जाते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के, और इसका एक पर्टिकुलर नाम है नोडुलर मास का, जो कि MSU क्रिस्टल्स का, टोफी इसको कहते हैं। इट मे बी डिपॉजिटेड इन द सॉफ्ट टिश्यूज रिजल्टिंग इन क्रोनिक टोफेशियस गाउट। ये फिगर में अभी बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स, किडनी में भी यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं अगर एक्सेसिव यूरिक एसिड, इसको यूरोलिथियासिस कहते हैं। दिस कैन आल्सो बी सीन। Hyperuricemia, while necessary, is not sufficient to cause gout, है ना? मतलब हाइपर है तो गाउट होना जरूरी नहीं है कि गाउट भी हो, बट गाउट अगर है तो हाइपर यूरिसीमिया पक्का ही पर्सन को है, ब्लड में लेवल्स ज्यादा है। हाइपरयूरिसीमिया टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस। अगर हाइपरयूरिसीमिया है तो श्योर कर लेना चाहिए कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको इंडिकेटिव होता है। नाउ द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ गाउट रिक्वायर्स aspiration and examination of synovial fluid from an affected joint या material from tophus, using which technique? Polarized light microscopy से, to confirm the presence of needle-shaped monosodium urate crystals. तो definitive diagnosis अगर gout की करना है तो उसके लिए aspiration and examination of synovial fluid या फिर material from the tophus using light microscopy, polarized light microscopy, जिसमें हमको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दिखेंगे। ये फिगर है जो कि टोफेशियस गाउट, ये नोडुलर मासेस आपको जो दिख रहे हैं ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के नोडुलर मासेस हैं। इन्हीं से हमको एस्पिरेशन करना है फ्लूइड का, है ना, या मटेरियल का। इस मटेरियल का हमको यहाँ से इसको एस्पिरेट करना, फिर एग्जामिन करना है लाइट माइक्रोस्कोपी में, जिसमें हमको क्रिस्टल्स दिखेंगे। कमिंग फिगर में आपको दिखाएंगे ना। ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है
ये जो सीरिंज से, स्टेराइल सीरिंज से नीडल और सीरिंज यूज किए जा रही हैं फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए फ्रॉम अ जॉइंट। ये जॉइंट का फिगर है और इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस जॉइंट एस्पिरेशन एक प्रोसीजर है जहां पर एक स्टेराइल नीडल और सीरिंज यूज किया जा रहा है तो ड्रेन फ्लूइड को बाहर निकालते हैं सेनोवियल फ्लूइड को जॉइंट से, उसको एग्जामिन करने के लिए। और एनालिसिस ऑफ जॉइंट फ्लूइड कैन हेल्प टू डिफाइन द कॉजेज ऑफ जॉइंट स्वेलिंग। जब हम फ्लूइड को एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कारण क्या है जॉइंट की स्वेलिंग का या आर्थराइटिस का। ये इन्फेक्शन तो नहीं है, गाउट तो नहीं है, या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, र्यूमेटॉइड डिजीज तो नहीं है। सो वी विल हैव टू एनालाइज द फ्लूइड और इस प्रोसेस को आर्थ्रोसिंथेसिस कहते हैं। ये आपको जो आप देखेंगे पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी में, तो ये जो स्लाइड है आप देख रहे हैं इसमें कि मोनोसोडियम क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स के अंदर। ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ गाउट। Gout can be diagnosed by presence of negatively birefringent, क्या होता है नेगेटिवली बायफ्रिंजेंट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन एस्पिरेटेड। जो फ्लूइड हमने आर्थ्रोसिंथेसिस से एस्पिरेट किया था जॉइंट से, उसको हमने एग्जामिन किया पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी में, तो हमको ऐसे बायफ्रिंजेंट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स अगर दिखते हैं, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ गाउट। यहाँ पर तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स के अंदर। नाउ ये तो ओवर प्रोडक्शन हो गया। दूसरा ये हम कॉजेज देख रहे हैं, या तो ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। विल बिगिन विद अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ओवर 90% ऑफ इंडिविजुअल्स आप देखेंगे जिनमें हाइपर यूरेसीमिया कॉज होता है अंडर एक्सक्रीशन से यूरिक एसिड के। अंडर एक्सक्रीशन कैन बी प्राइमरी due to as yet unidentified inherent excretory defects। अंडर एक्सक्रीशन क्यों होता है? तो एक्सक्रीटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अभी भी वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि क्यों होते हैं, और वो इनहेरेंट है एक्सक्रीटरी डिफेक्ट्स के कारण, या सेकेंडरी टू नोन डिजीज प्रोसेसेस जो कि अफेक्ट करती हैं हाउ किडनी हैंडल्स यूरेट। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिडोसिस में लैक्टेट इंक्रीजेस रीनल यूरेट reabsorption, thereby decreasing its excretion. And to environmental factors such as the use of drugs, for example thiazide diuretics, या फिर exposure to lead, उसको बोलते हैं सैटर्निन गाउट। तो अंडर एक्सक्रीशन किन किन कारणों से होता है वो बताया गया है इस स्लाइड में। अंडर एक्सक्रीशन ओवर 90% लोगों में जो है हाइपर यूरेसीमिया अंडर एक्सक्रीशन के कारण होता है यूरिक एसिड के, और अंडर एक्सक्रीशन प्राइमरीली जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड कॉज रहता है, उसका इनहेरेंट कॉज रहता है, एक्सक्रीटरी डिफेक्ट रहता है प्राइमरीली। सेकेंडरी वो कई नॉन डिजीज प्रोसेसेस में भी होता है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि किडनी ट्यूब्यूल्स जो किडनी है वो किस तरह से वो हैंडल करती, क्या हो जाता है लैक्टिक एसिडोसिस में, वो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन यूरिनल यूरेट का हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, और उसके कारण जो है यूरेट एक्सक्रीशन कम होता है। दूसरा सेकेंडरी कारण उन्होंने बताया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे अगर आप ड्रग्स का यूज कर रहे हैं थायजाइड डायूरेटिक्स का, तो भी एक्सक्रीशन कम होगा, और या फिर लेड के एक्सपोजर में है तो भी उसको सैटर्निन गाउट कहते हैं, उसके कारण भी एक्सक्रीशन कम होगा यूरिक एसिड का, लेड का अगर एक्सपोजर हो तो ये कारण है यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन के। फिर ओवर प्रोडक्शन यूरिक एसिड का, तो लेस कॉमन कॉज है ओवर प्रोडक्शन के, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है हाइपरयूरेसीमिया का फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। प्राइमरी hyperuricemia is for the most part idiopathic, having no known cause। जो प्राइमरी यूरेसीमिया है वो नोन, उसका कोई नोन कॉज नहीं है, वो इडियोपैथिक रहती है। However, several identified mutations in the gene for X-linked PRPP synthetase result in the enzyme। कई सारे वैसे म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं उस जीन के लिए जो कि X-linked PRPP synthetase को कोड करता है। तो उससे क्या होता है, म्यूटेशंस की वजह से एंजाइम में या तो इंक्रीज्ड मैक्सिमम वेलोसिटी होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ PRPP, या तो Km उसका जो है वो कम होता है फॉर राइबोस 5 फॉस्फेट, या फिर डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी रहती है टू प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं उस एंजाइम की।
PRPP synthetase, या तो उसकी increased maximum velocity रहेगी for production of PRPP, या Km कम होगा राइबोस 5 फॉस्फेट के लिए, या फिर सेंसिटिविटी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए कम होगी जो कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, तो उस कारण से वो उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है. इन ईच केस इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी PRPP की हो जाती है. इट इंक्रीजेस प्यूरिन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन एलिवेटेड लेवल्स ऑफ प्यूरिन बनेगा, तो उसका इन प्रोडक्ट यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा. Now, Leishman syndrome है एक दूसरा, एक Leishman syndrome which also causes hyperuricemia as a result of decreased salvage of. उसका कारण ये रहता है कि HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर होता है लेशनियन सिंड्रोम, और इसमें हाइपोजेंथीन और ग्वानिन का सैल्वेज नहीं होता, इस कारण से उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और सब्सिक्वेंटली वो PRPP की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि PRPP भी उनके कन्वर्जन वाले रिएक्शंस में यूज होता है, तो PRPP बढ़ जाता है. तो लेशनियन सिंड्रोम इज अनदर कॉज फॉर secondary cause for this overproduction of uric acid, hyperuricemia. Secondary hyperuricemia typically is the consequence of increased availability of purines. तभी भी प्यूरिन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होंगी तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हाइपरयूरिसीमिया होगा. फॉर एग्जांपल, इन पेशेंट्स जिनमें माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, who are undergoing chemotherapy, so they have a high rate of cell turnover. सेल टर्नओवर उनका ज़्यादा होता है और इस कारण से उनमें प्यूरिन्स की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, de novo सिंथेसिस ज़्यादा होगी. Hyperuricemia can also be the result of seemingly unrelated metabolic diseases such as von Geerk disease में या hereditary fructose intolerance में भी hyperuricemia देखा गया है. गाउट की ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो acute attacks of gout are treated with anti-inflammatory agents. इन्फ्लेमेशन को भी हमें कम करना है, तो colchicine, steroidal drugs such as prednisone and non-steroidal drugs such as indomethacin यूज किए जाते हैं. colchicine कैसे काम करता है? तो it prevents formation of microtubules, thereby decreasing the movement of neutrophils into the affected area. Like other anti-inflammatory drugs, it has no effect on uric acid levels. Now, जो long-term therapeutic strategies हैं for gout involve lowering the uric acid level below its saturation point, that is 6.5 mg per dl से कम करना है, thereby preventing the deposition of urate crystals. तो उसके लिए long-term therapeutic strategies क्या हैं? Uricosuric agents. Uricosuric agents हैं provine acid और sulfapyrazone. कैसे काम करते हैं? तो ये इंक्रीज करते हैं renal excretion of uric acid and they are used in patients who are under excretors of uric acid. तो uricosuric agents number 1. दूसरा allopurinol. Allopurinol एक structural analog है हाइपोजैंथीन का, और ये क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है यूरिक एसिड की सिंथेसिस को. इट इज यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर ओवर प्रोड्यूसर्स. तो हाइपोजैंथीन का ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है. ये जैंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है और इस तरह से यूरिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. It is converted in the body to oxypurinol, and oxypurinol inhibits xanthine oxidase, resulting in accumulation of what? Hypoxanthine and xanthine compounds, which are more soluble than uric acid, and therefore they are less likely to initiate an inflammatory response. Now, in patients जिनमें normal levels HGPRT का रहता है, उसमें hypoxanthine can be salvaged. Hypoxanthine का use किया जा सकता है, reducing the levels of PRPP, and therefore de novo प्यूरिन सिंथेसिस को कम कर सकते हैं. तो फेब्यूक्सोस्टैट करके एक नॉन प्यूरिन इनहिबिटर है xanthine ऑक्सीडेज का. दिस इज आल्सो अवेलेबल, फेब्यूक्सोस्टैट. uric acid levels in blood normally are close to saturation point, and one reason for this may be strong इसका जो uric acid का antioxidant effect अच्छा रहता है. सेकेंड जो डेफिशिएंसी है, डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म का, वो है एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, बट इन ह्यूमंस lymphocytes have the highest activity of cytoplasmic enzyme adenosine deaminase. So deficiency of adenosine deaminase results in accumulation of what? Adenosine
हमने देखा था कि एडिनोसिन डीअमाइनेज एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है आइनोसिन में, सो उसका accumulation हो जाता है, which is converted into ribonucleotide or deoxyribonucleotide forms by cellular kinases. Now deoxyadenosine phosphate levels जैसे बढ़ते हैं, ribonucleotide reductase inhibit हो जाता है, thereby preventing the production of all deoxyribose containing nucleotides. Deoxyadenosine triphosphate levels जैसे बढ़ते हैं तो ribonucleotide reductase inhibit हो जाता है और ये जितने भी deoxyribose containing nucleotides हैं उनके प्रोडक्शन को inhibit कर देता है, prevent कर देता है. Consequently, cells cannot make DNA and they cannot divide. So deoxyadenosine triphosphate and adenosine that accumulate in ADA deficiency lead to what? Developmental arrest and apoptosis of lymphocytes. इस डिजीज के सबसे सिवियर फॉर्म, मोस्ट सिवियर फॉर्म में आप देखेंगे, दिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर causes a type of severe combined immunodeficiency disease involving decrease in T cells, B cells and all natural killer cells. क्योंकि बनता ही नहीं है ना, डीएनए ही बनना, डिवाइड सेल डिवाइड होना बंद हो जाता है ना, डेवलपमेंटल अरेस्ट हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है लिम्फोसाइट्स का, तो सारे सेल्स में कमी आ जाती है और सिवियर फॉर्म में बहुत कमाइन immunodeficiency से हो जाती है. It is estimated that in United States ADA deficiency accounts for approximately 14% of all जितने भी केसेस सिवियर immunodeficiency के वो ADA deficiency से होते हैं. तो ट्रीटमेंट्स में यह है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर जीन थेरेपी, और विदाउट अप्रोप्रिएट अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर यूजुअली डाई फ्रॉम इन्फेक्शन. इम्यूनिटी की बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द एज ऑफ 2 years चिल्ड्रन यूजुअली सर्वाइव कर पाते हैं सिर्फ 2 साल तक. प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी से भी एक इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट होती है, बट इट इज लेस सिवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी प्राइमरली इन्वॉल्विंग टी सेल्स. उन्हें पता था प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की भी डेफिशिएंसी से इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, बट लेस सिवियर देन SCID, which is due to adenosine deaminase deficiency.